Okay, good evening friends. We are back again for a new session on demand analysis. Now this would be our session number 3. We have done 2 sessions so far. In the last session we have covered, now this is a textbook what I am referring on my tablet. In the last session we have seen the reason why the demand curve slopes downwards from left to right. After that we have seen what are the types of demand. In that we have seen that there are so many types: direct demand, indirect demand, complementary or joint demand, composite demand and competitive demand, right? After that, the third topic which we did in the last lecture was the determinants of demand, and we did a small code also, that was SEAT, TIN and P3. Okay, the price, okay, the demand is dependent upon how many factors. Now I'm revising this. Why? Because the same thing we are going to use in today's first topic, that is assumptions. After we do the law of demand statement, the next topic we will be taking is assumptions. Now assumptions is more or less dependent upon the determinants of demand. अगर आप determinants of demand अच्छी से समझ गए हो, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है, लास्ट सेशन में किया है, तो ये assumptions आपके लिए फट it would be just like a piece of cake. Okay, so I'm just revising what were the determinants which we did last time. Anybody? You can refer to your textbook, no issues. I don't expect you to memorize it so fast. You have your rough book in front of you, you have your textbook, go through it. The price of the product, the income of the consumer, the prices of substitute goods, the prices of complementary goods, the nature of the product, if it is an absolute necessity, for example if it is salt or if it is some important medicine which I have to have, then the size of the population, अगर ज़्यादा तादाद है, ज़्यादा लोग है, तो the quantity demanded भी ज़्यादा होगी. Then we saw was expectation about future prices. गवर्नमेंट का ऐलान हो गया कल का पेट्रोल का भाव बढ़ने वाला है, तो आज मैं जाके मेरी गाड़ी की टंकी को फुल कर दूंगा. Then advertisement you can say प्राइस के बाद में सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर है कि लोग क्यों कोई चीज खरीदते हैं. After that we have seen taste, habit, fashions. मुझे चाय पीने की आदत है, मैं पीता रहूंगा. And level of taxation. There are some other factors also like climatic conditions. अगर अच्छा माहौल है, बारिश अच्छी हुई है, फसल अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो डिमांड would be more. changes in technology. अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो कोई चीज आपको वही चीज सस्ती में मिल जाएगी. गवर्नमेंट पॉलिसी, उस चीज के बारे में क्या है. customs and traditions which are prevalent in different countries at different points of time. Now today what we are going to start is the first topic. We'll try to cover 5 topics in today's brief session. पहले हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या है, assumptions उसके क्या क्या है, डिमांड स्केड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है और उसके exceptions क्या है. Okay, now remember what I told you, that to remember economics very nicely you should be very passionate about diagrams, you should be very passionate about graphs, right? और जो definition होता है, the statement of the law what we have, वो तुम्हारे को एकदम पिट पैट होना चाहिए. You should know it exactly word to word by heart. Please don't take any chances. For example, if I ask you what is utility, आपको पता होना चाहिए. The answer is utility is want satisfying capacity of a commodity. If somebody asks you what is the law of diminishing marginal utility, आपको बोलने आना चाहिए the additional benefit which a person derives from a given increase in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Believe it or not, I learned this by heart when I gave my 12th standard way back in 1994. आज से 26 साल पहले, जब आप में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था, उसके बाद में I have not learned it, but somehow like if you really have a passion for it, और आप अच्छी से उसको जस्ट कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो just like Johnny Johnny Yes Papa and Baba Black Sheep, तुम्हारे जहन में वो जाके बैठ जाता है, आप उसको भूलोगे नहीं. Right? Okay, so let's start. As I told you, I am not going to take any chances. तो law of demand भी मैं जो आपकी किताब के अंदर लिखेला है वो आपको देख के पढ़ के सुनाऊंगा. Right? Now, as we did before, how do you remember? You make a small sort of a diary और उसके अंदर आप लिखते चले जाओ. Now, what does the law of demand say? Again, Prophet Arthur Marshall, Principles of Economics, year 1890. Other things being equal, remember ceteris paribus? What had we done last time? हमेशा ये चीज आपको बार बार आती रहेंगी. That is ceteris paribus or
अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। मतलब ये लॉ तब ऑपरेट करेगा जब बाकी के सारी चीजें जो है कांस्टेंट रहेंगी, या इक्वल आप बोलिए या कांस्टेंट बोलिए, कांस्टेंट इज अ बेटर वर्ड। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded. Higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, higher is the quantity demanded. This is the law of demand. Other things being constant, higher the price of a commodity, lower is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, higher is the quantity demanded. This is what we have been doing along so on and so forth, and this is the third lecture in this same demand analysis, right? But जब आपको लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाएगा तो आप कोई भी वर्ड की मिस्टेक जरा भी यहाँ वहाँ नहीं करोगे. You will write it as it is. That is, Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890 has defined law of demand as other things remaining constant, higher the price of a commodity, lower is the quantity demanded, and lower the price of the commodity, higher is the quantity demanded. यानी कि एक सरल साइकोलॉजिकल बिहेवियर की तरफ इशारा हो रहा है कि जनरली पब्लिक कोई चीज की कीमत कम होती है तो ज्यादा खरीदती है, और कोई चीज की कीमत ज्यादा होती है तो कम खरीदती है. Now, after this law of demand का statement, we come to assumptions. This law will be applicable when certain things are fulfilled, which are called as assumptions. You understand what do you mean by assumptions? अगर ये लॉ को काम करना है तो ये सारी चीजें फुलफिल होना चाहिए. I assume that ये है तो ये लॉ काम करेगा, नहीं तो ये लॉ काम नहीं करेगा. उसके अंदर पहला है कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. नाउ रिमेंबर, ये हम लोग डिटर्मिनेंट्स में किए थे इनकम, है ना, वही एजम्पशन में आ गया. कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, इंसान की इनकम सेम होना चाहिए. अगर प्राइस वही है लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ी, प्राइस वही है ओके, लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो इवन तो द प्राइस इज द सेम, मैं क्वांटिटी ज्यादा खरीदूंगा. यहाँ पे प्राइस कम हुआ क्या? नहीं, प्राइस उतना ही है. प्राइस इज constant, but I am demanding more. Why? Because my income has increased. ठीक है? I'll write it once again in front of you, and this will hold forth for everything. क्या लिखेंगे हम लोग? Price remaining the same, income increases, therefore the quantity demanded also increases. अब P के जगह पे बहुत सारी चीजें आ सकती है. सॉरी, पी नहीं, आई के जगह पे बहुत सारी चीजें आ सकती है. जैसे पहला क्या था? इनकम क्या हो गया. सेकेंड, हम लोग क्या कर रहे हैं? assumptions to the law of demand. सेकेंड इज साइज ऑफ पॉपुलेशन. मैं ये एज्यूम करता हूं कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन सेम है. अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो इवन तो प्राइस सेम है, अगर यहाँ पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएंगी. एक बंदे की किराने की दुकान है, सडनली वो एरिया के अंदर 4 नवी बिल्डिंग आ गई. 4 नवी बिल्डिंग के अंदर 200 लोग रहने के लिए आ गए, तो ऑब्वियसली वो दुकान के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएंगी बिकॉज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड. प्राइस बढ़ा क्या? नो, प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट. ओके, व्हाट इज द थर्ड रीजन, थर्ड assumption? प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. याद आया चाय कॉफी? अगर प्राइस और सब्स्टिट्यूट गुड्स में कोई चेंज होता है तो भी यहाँ पे बदली आ जाती है. हम लोग चाय कॉफी में क्या लिए थे? कॉफी का प्राइस कम हो गया तो चाय का डिमांड कम हो गया. क्यों? क्योंकि चाय पीने वाले कॉफी पीने चले गए. ठीक है ना. प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे क्या है तो था हम लोग के कॉफी के एग्जाम्पल में, फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. ठीक है. चाय का प्राइस गिरा, चाय का प्राइस बढ़ा नहीं, लेकिन चाय का डिमांड कम हो गया. यस, क्यों? क्योंकि कॉफी का डिमांड, प्राइस कम हो गया. इसके लिए लोग जो चाय पीते थे कल तक, वो आज कॉफी पीने लगे. फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. The prices of complementary goods should remain constant. Income should remain
constant. The size of the population should remain constant. Prices of substitute goods should remain constant. Prices of complementary goods should remain constant. क्या एग्जाम्पल लिए थे हम लोग? दूध का प्राइस बढ़ गया तो चाय की पत्ती का डिमांड कम हो गया, ठीक है? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. फिफ्थ, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस. आज घोषणा हो गई कि पेट्रोल का प्राइस कल से बढ़ने वाला है, तो आज जाके लोगों की कतार लग गई पेट्रोल पंप के सामने, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि कल से पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा. तो आज की तारीख में क्या हो गया? द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज. लेकिन क्या प्राइस कम हुआ है उसका? नहीं, प्राइस उतना ही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, क्योंकि लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि कल जाके प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए आज ही खरीद लो. हो सकता है कि आज भी प्राइस ज्यादा है, लेकिन कल और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आज जितना हो सकता है खरीद लो. नेक्स्ट, नो चेंज इन हैबिट्स. हैबिट, टेस्ट, फैशंस. अगर कोई शख्स की हैबिट है, सपोज हैबिट चेंज हो गई, मैं चाय कल तक पीता था, अभी मैं चाय पीना सडनली बंद कर दिया. क्या चाय की प्राइस बढ़ा? नहीं, लेकिन मैंने चाय पीना बंद कर दिया. क्यों? सडनली आई रियलाइज, समबडी सेड कि चाय नहीं पीना चाहिए, उससे एसिडिटी होती है, तो आई स्टॉप ड्रिंकिंग टी ऑल टुगेदर. तो दिस इज अ चेंज इन माय टेस्ट, अ चेंज इन माय लाइक्स, डिसलाइक, अ चेंज इन माय हैबिट. तो दिस आल्सो शुड रिमेन कांस्टेंट. लास्टली, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी जो है, दैट आल्सो शुड रिमेन कांस्टेंट. अगर गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी बढ़ेगी तो हो सकता है कोई चीज की कीमत बढ़ जावे, हो सकता है कोई चीज की कीमत बढ़ जावे. आफ्टर दिस we will come to the law of demand का schedule, we'll come to the law of demand का curve, and we'll फटाफट see, which I've already seen in the previous session when we did the individual demand schedule and individual demand curve, right? Now coming to the demand schedule and the demand curve, which we have already seen when we did the individual demand schedule and the individual demand curve, but since this is the format which is elucidated in your textbook, तो हम लोग वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. दोबारा हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, और जिसको ऑलरेडी आता है उसके लिए एक फटाफट रिकैप हो जाएगा. क्या होता है? प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड घटता है, प्राइस जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता है. दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड. So we have taken, this is the demand schedule, this is the demand curve. We see that as the price falls from, जब प्राइस 50 रुपए था, the quantity demanded was 1. When the price 50 से 40 हो गया तो ये 1 से 2 हो गया. जब 40 से 30 हो गया प्राइस, तो मेरी क्वांटिटी बढ़ गई. जब 30 से 20 हो गया प्राइस, तो मैं 4 यूनिट खरीदने लगा. और जब प्राइस उसका फाइनली 10 रुपये हो गया, तो मैं सबसे ज्यादा 5 रुपया कमोडिटी खरीदने लगा. तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल. ठीक है, यू शुड नॉट बी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस. अगर किसी को भी जरा से भी डाउट है तो मैं ये समझूंगा कि मैं एब्सोल्युटली फेल हो गया. यू वुडंट लाइक मी टू थिंक लाइक दिस, लाइक ओके, आई होप सो. यही चीज को मैं अगर डिमांड एक ग्राफ में प्लॉट करता हूं, here I take the x axis, this is my y axis. I always take my quantity demanded on the x axis, the price on the y axis. Quantity demanded क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. On the y axis I take the price 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50. यही चीज को मैं प्लॉट करता हूं, तो I see that there is a downward sloping demand curve which slopes downwards from left to right, which shows an inverse relationship between price and demand. Okay, so far we have done the law of demand. उसका statement क्या है? We have seen the assumptions, we have seen the demand schedule, we have seen the demand curve. Now let's come to a very interesting discussion. Okay, very fast we'll see what it is. This is the normal thing. Remember we have done a lot of determinants, कि ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है. ठीक है, और इस सेशन के शुरुआत में हमने किया समथिंग कॉल्ड एज assumptions. assumptions क्या था? ये चीजें कांस्टेंट रहना चाहिए. अगर ये चीजें बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट ऑपरेट. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व. नॉर्मल डिमांड कर्व क्या होता है? व्हेन द प्राइस इज राइजिंग, द क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉलिंग. व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग, द क्वांटिटी डिमांडेड इज
राइजिंग, और इसको हम लोग प्लॉट करते हैं लाइक दिस, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज योर नॉर्मल थिंग. एक्सेप्शनल में क्या होता है, when the price is rising, the quantity demanded is also rising. When the price is falling, the quantity demanded is also falling. और उसमें क्या होता है, डिमांड कर्व rises upwards from left to right. How? Why? कैसे हो गया? Similar thing. से आज के तारीख में पेट्रोल का भाव ज्यादा है, आज के तारीख में पेट्रोल का भाव ज्यादा है, तो मुझे क्वांटिटी डिमांड उसकी कम करना चाहिए, तो ये ग्राफ आएगा ना, राइट. लेकिन व्हाट हैपेंस इज, इवन तो आज की तारीख में पेट्रोल का भाव ज्यादा है, मुझे लगता है कि कल पेट्रोल का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा. तो इवन तो आज की तारीख में पेट्रोल का प्राइस ज्यादा है, मैं ज्यादा खरीदता हूं. ठीक है, पेट्रोल का प्राइस आज ज्यादा है लेकिन मैं फिर भी ज्यादा खरीद रहा हूं. तो व्हाट इज हैपनिंग इज माय डिमांड कर्व इज गोइंग अपवर्ड्स फ्रॉम left to right. This shows a direct relationship between price and quantity demanded. उसी तरीके से let's say for example कोई चीज है जो स्टेटस सिंबल है, like ज्वेलरी, like ornaments, वो चीज का जब प्राइस बढ़ता है ना तो उसका स्टेटस सिंबल हो जाता है. तो मैं चाहता हूं कि वो मैं पहनूं. When I go to a marriage party, I want to wear very nice diamond. The ladies will like to wear very nice diamond necklaces. I would like to go in a Mercedes. I would like to go in a Ferrari. Why? Because they are status symbol. कल की तारीख में फेरारी का भाव मारुति के जैसा हो जाए 800 का, तो तुम फेरारी में जाओगे? नहीं जाओगे. डायमंड का भाव इमिटेशन के भाव का हो जाए तो तुम डायमंड खरीदोगी? नहीं खरीदोगी. Why are you wearing this? Primarily because it is a status symbol. तुम्हारे को उससे एक सोशल प्रेस्टीज मिलती है. Therefore, you are not an ordinary customer. You don't follow the normal demand schedule and curve. You are an exceptional customer. तो जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे quantity demanded also what? Increases. Right? Now in the last thing we'll come to exceptions to the law of demand. We'll see that what are the exceptions. Now quickly whatever we have done so far, quickly have a recap. In the meantime I will meet out the board. The last topic for today's session is exceptions to the law of demand. So far we have done the law of demand, the assumptions, the demand schedule, the demand curve, what is an exceptional demand curve, and the last topic, what are the exceptions to the law of demand. Again, law of demand क्या है? I am sorry but this is my style of teaching. मैं इतना रिपीट कर दूंगा कि तुम पक जाओगे and you will say सर यार अंकल सर्किट है. इतना थोड़ी कोई रिपीट करता है. एक छोटी सी चीज को इतनी बार 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 बोलने से ही तुम्हारे दिमाग में बैठेगा. Trust me and you will remember me for that. Okay, please put it in your comments also. Now what are the exceptions? Exceptions are, the first exception is Giffen's paradox. You will get a short note what are the exceptions to the law of demand. You will have what do you mean by Giffen's paradox. Giffen's paradox was discovered by Sir Giffen in Ireland when he saw that. Now this is applicable to all these products. Generally the community is a poor community. The product which they are purchasing is a low income product, जिसके ऊपर वो अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा उसी पे खर्च करते हैं. Those are called as Giffen's goods, right? Primarily the community is a lower middle class community. The product is in question is a low priced product and it is a very necessary product on which they spend a substantial portion of their income. गरीब लोग हैं, एक सस्ती चीज खरीदते हैं जिसके ऊपर वो अपने इनकम का ज्यादातर हिस्सा उसी पे खर्च करते हैं. तो क्या होता है, सपोज आई टेक, अभी ये जो उन्होंने देखा कि I believe it was Ireland where he saw that people were spending a substantial portion of their income on bread. पाव के ऊपर लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, या यूं हम लोग समझ रहे हैं कि रोटी के ऊपर. ठीक है, अगर वो 1000 रुपया कमाता था तो समझो वो 400 रुपया का तो खाली पाव ही खा लेता था. उसकी इनकम थी 1000 में तो सिर्फ 400 रुपया पाव का हो जाता था. नाउ जब इसका प्राइस घटता था, when the price of bread fell, suppose वो 400 की चीज 200 में आने लगी, तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होना चाहिए, दे शुड परचेज मोर ब्रेड. लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग पाव उतना ही खरीदते थे या पाव कम खरीदते थे, और वही पैसे जो उनके पास बचते थे उससे कोई अच्छी चीज
खरीदते थे. फॉर एग्जाम्पल दे यूज टू गो एंड परचेज सम मोर वेजिटेबल्स और सम मोर ग्रेन्स, और इफ दे वर नॉन वेज सम मोर स्लाइसेस ऑफ मीट और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, दे यूज टू परचेज मोर better quality products. So this is called as Giffen's paradox. Second is prestige goods. Prestige goods are those goods which are demanded as a status symbol, which gives the person who is wearing them a kind of, a social prestige. वो कीमती हार पहनने से ये पता चलता है कि ये बंदी जो है वो बहुत मालदार है. ये कीमती घड़ी पहनने से, रोलेक्स की घड़ी पहनने से पता चलता है कि पहनने वाला का कोई स्टेटस है. कीमती गाड़ी चलाने से पता चलता है कि ये बंदे का, ये फैमिली का कोई स्टेटस है. तो इवन दो द प्राइस ऑफ अ रोलेक्स वॉच इज हाई, आई वुड स्टिल परचेज इट बिकॉज इट इज गिविंग मी अ स्टेटस सिंबल. So this is an exception to the law of demand when I am purchasing more when the price is high. Okay, coming to the third, that is speculation. कल भाव बढ़ेगा घटेगा, मुझे ऐसा लगता है कि कल भाव और बढ़ेगा तो मैं आज की तारीख में और खरीद लूंगा. आज भाव बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है, but still I purchase more. What happens in case of a share market? What do the stockbrokers do? They do the same thing. कल अगर मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा तनाव आ गया, टेंस मार्केट सिनेरियो हो गया है और सारे प्राइसेस गिरने वाले, सो व्हाट डू? आई स्टार्ट सेलिंग माय प्रोडक्ट्स. ओके, तो दैट इज स्पेक्यूलेशन रिगार्डिंग प्राइसेस. नाउ कमिंग टू प्राइस इल्यूजन. प्राइस इल्यूजन क्या है? गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ अ चॉकलेट कैंडी. ओके, एक चॉकलेट की कैंडी 10 रुपए की भी आती है, चालू वाली. फ्रॉस्टिक विच आई लाइक द मोस्ट 25 रुपए की आती है, लेकिन मैग्नम 80 रुपए की आती है. मैं मैग्नम एक बार सिर्फ खाया एडवर्टाइज के लिए, बिकॉज यू शुड ट्राई एवरीथिंग वंस, बट आई फाउंड द टेस्ट टू बी ऑलमोस्ट द सेम जस्ट लाइक माई फ्रॉस्टिक. तो आई वेंट बैक टू हैविंग फ्रॉस्टिक. व्हाई डिड आई हैव इट फॉर द फर्स्ट टाइम? देयर वाज अ प्राइस इल्यूजन कि 80 रुपए की चॉकलेट कैंडी, यार इसमें कुछ तो होगा, ऐसा ही थोड़ी कोई प्राइस बढ़ाएगा, कहाँ 25 रुपया, कहाँ 80 रुपीज. तो ऑल्दो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे होंगे, बट मेरे जहन में वो एक प्राइस इल्यूजन क्रिएट हो गया था कि इफ द प्राइस इज हाई देन दैट कमोडिटी वुड बी हाई. ठीक है, योर मॉम गोज टू परचेज क्लोथ्स इन द मार्केट. एक उनको कपड़ा मिलता है सस्ते का, दूसरा कपड़ा मिलता है सपोज 3 गुना प्राइस ज्यादा, 4 गुना प्राइस ज्यादा. और शी गोज टू परचेज फ्रूट्स, द सेम फ्रूट इज देयर, द सेम एप्पल्स. ये कैसा 40 रुपया किलो, वो कैसा 200 रुपया किलो. तो she will also feel 200 रुपया किलो तो कुछ तो होगा इसके अंदर. She won't buy that 40 रुपीज का किलो, नहीं, कुछ सड़ा हुआ रहेगा, शायद खराब निकलेगा अंदर से. She will buy that because there is a price illusion कि अगर प्राइस ज्यादा है तो क्वालिटी उसकी अच्छी होगी. That is why you end up buying that particular product. Next is ignorance. मैं गया मार्केट के अंदर माल खरीदने के लिए, मुझे पता ही नहीं कि आज भाव बढ़ गया है, कल सस्ता था, मैं तो गया अपना लेके आ गया. ठीक है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ मार्केट कंडीशंस. इट इज ड्यू टू माई इग्नोरेंस कि अगर वो चीज का भाव बढ़ा हुआ भी था लेकिन मैंने उसे खरीद लिया. एक्चुअली मुझे खरीदना नहीं चाहा, लेकिन मुझे कल के हालात पता नहीं थे, इसके लिए मैंने वो चीज खरीदी. दैट इज इग्नोरेंस. लास्ट, व्हाट इज इट इन एक्सेप्शंस इज हैबिचुअल गुड्स. व्हाट डू यू मीन बाय हैबिचुअल गुड्स? द सेम व्हाट सादिक अंकल लाइक्स, अ कप ऑफ टी. मुझे अगर चाय का शौक है तो मैं तो भैया चाय पीऊंगा. अगर वो चाय का प्राइस बढ़ भी जाता है, बट चूंकि मुझे उसकी आदत है, मैं स्टिल वो चीज को खरीदूंगा बिकॉज आई लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी. आई एम हैबिचुएटेड टू हैविंग अ कप ऑफ टी. तो ये सारी चीजों के अंदर इवन दो द प्राइस इज हाई, द क्वांटिटी इज स्टिल परचेस्ड. So all these things are called as exceptions to the law of demand. Now this was the sixth and the last topic what we did in today's lecture. To have a quick recap, we started off with the law of demand statement. We saw that other things remaining constant. The lower the price of a commodity, the higher the quantity demanded. The higher the price of a commodity, the lower the quantity demanded. We have seen what are the assumptions. ये चीजें अगर constant रहेगी तो वही लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करेगा. वी हैव सीन द डिमांड स्केड्यूल, वी हैव सीन द डिमांड कर्व, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व में क्या होगा?
When the price is high, the quantity also would be high, so that the demand curve will slope upwards from left to right. And lastly, we have seen the exceptions. These are the exceptions to the law of demand. जिसके अंदर even though the price would be high, the quantity demanded would also be high. Right? I hope you have followed so far. Our last session, that is our lecture number 4 in demand analysis, would be about extension contraction of demand and increase decrease of demand. That would be our last lecture. Stay tuned. Please keep on watching this channel. Thank you. Good luck.